So today's topic is normal forms and context-free grammar. Why this normal forms are required, why we are going to study it. Actually, normal forms are a particular format for writing a grammar so that the grammar can be easily converted into PDA or any other form as per requirement. So to do operations on context-free grammars, we use these normal forms. So first of all, we convert those grammar into normal forms and then we'll perform our operation on those context-free grammar. So this is the reason why we are studying this topic normal forms. Now coming on to what are the different normal forms which we are going to study. So first of all, first one is Chomsky normal form and second one is Grebac normal form. These two normal forms are named after two scientists. First one is Noam Chomsky and second one is Grebac. So पहले हम इसमें देखेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कैसे ग्रामर को हम कन्वर्ट करेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए ग्रामर को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है. इट इज नेसेसरी फॉर अ ग्रामर टू सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन, then we can say that given grammar is in Chomsky normal form. What are these two conditions? First one is that there should be no epsilon production in a grammar. मतलब आपके ग्रामर में कहीं भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं होगा. अगर है तो आपको उसे रिमूव करना होगा और उसका तरीका मैंने बताया है आपको when we were studying removal of null production. In that class we studied ki how to remove a null production from any grammar. Then second condition which is to be satisfied is that grammar should be in the form of A produces BC and A produces small a. Now आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर A produces BC लिखने का मतलब है कि राइट हैंड साइड पर दो वेरिएबल ही आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता है. सिर्फ दो वेरिएबल ही आएंगे या सिंगल टर्मिनल आएगा. So either of these two things can be there on right hand side when we are talking about Chomsky normal form. Either two variables or single terminal. That's it. Nothing other than these two things. So let us see with the help of an example that if a grammar is given to you, how you are going to convert it into Chomsky normal form. So here is an example. S produces 0a 1b, A produces 0a oblique 0 and B produces 1b oblique 1. This is a grammar which has been given to you. Now you have to convert it into Chomsky normal form. तो आप दो कंडीशन जो मैंने अभी बताई आपको, फर्स्ट वन इज एप्सिलॉन प्रोडक्शन, सेकंड वन इज A produces BC and A produces small a. ये कंडीशन चेक करनी है कि ये ग्रामर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं है. First of all, epsilon production, yes, there is no epsilon production in our grammar, so पहली condition तो satisfy हो गई. Now talking about second one में अगर हम देखें तो यहाँ पर S produces 0a 1b लिखा हुआ है. That means a terminal, then a variable, then again terminal, then again variable. और ऐसा हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं सिर्फ दो variable, either two variables or a single terminal. ठीक है. सेकेंड में आते हैं. सेकेंड में देखते हैं सेकेंड प्रोडक्शन इज A produces 0a. 0a makes एक जीरो जो है इट इज टर्मिनल एंड A is the variable. So the combination of terminal followed by variable is coming here. तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये भी हमारा CNF में नहीं है ये प्रोडक्शन. देन अगला देखते हैं A produces 0. A produces 0 is perfectly forming the Chomsky normal form. It is in Chomsky normal form because राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक टर्मिनल ही तो आ रहा है. फोर्थ, देन वी विल मूव ऑन टू फोर्थ प्रोडक्शन दैट इज B produces 1b. ये भी CNF में नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक टर्मिनल है 1 और उसके बाद एक वेरिएबल है B. तो दोनों ये वाला 1b चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा. बट अगर हम 1 की बात करें तो यस इट इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बिकॉज इट इज अ सिंगल टर्मिनल ऑन राइट हैंड साइड. सो व्हाट वी नीड एक्चुअली नीड our grammar into this format. मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे.
while solving the problem. This is the condition which is to be followed when we are going to convert grammar into Chomsky normal. Okay, so let us start with few things which you will by using which you will able to convert this grammar into Chomsky normal form. It is very easy. So what we have to do is to what I have done here in S produces 0a 1b, I have replaced 0 with x, capital X means a variable, and 1 with a y, variable y. तो मैंने यहाँ पर रीनेमिंग कर दी है, 0 को मैं अब कैपिटल X मानूंगा और 1 को मैं कैपिटल Y मानूंगा. सिमिलरली मैंने A प्रोड्यूसेस एक्स ए किया, लेकिन अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपने A प्रोड्यूसेस एक्स ए किया लेकिन इस 0 को X नहीं बनाया, तो क्या ये 0 हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? नो, ये तो परफेक्टली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में था. तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है तो वी विल नॉट टच दिस प्रोडक्शन. We will touch only those production which were creating problem to us, जो Chomsky normal form में नहीं थे. तो मैंने यहाँ इसको भी rename कर दिया XA. Then another one is B produces 1B. तो मैंने जैसा कि ऊपर 1 को Y नाम दिया है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, B produces YB ऑब्लिक 1. 1 को फिर से मैंने टच नहीं किया बिकॉज ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्शन नहीं है. ठीक है. नाउ विल चेक कि क्या अब हमारा प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर x और y का डेफिनेशन कौन बताएगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y की डेफिनेशन भी हमें लिखनी पड़ेगी. तो यहाँ पर हम x और y की डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Here x will produce, now x will produce just a second. Now here x is going to produce 0 and y is going to produce 1. So in this way we can define this grammar कि यहाँ पर x जो है वो 0 को प्रोड्यूस कर रहा है और y जो है 1 को प्रोड्यूस कर रहा है. इस तरीके से मैंने इसमें रीनेमिंग कर दी. ठीक है. लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है मेरे ग्रामर में. क्यों? बिकॉज अगर हम पहला वाला प्रोडक्शन देखें तो पहला वाला प्रोडक्शन अभी भी CNF में नहीं है. इसमें 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं अभी भी, तो ये अभी भी CNF के फॉर्म में नहीं है. CNF में तो क्या होता है, आइदर 2 वेरिएबल और सिंगल टर्मिनल. चलिए अगले चेक करते हैं. अगला हमारा यस, ये हमारा CNF में है क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहे हैं. ये एक सिंगल टर्मिनल आ रहा है तो ये भी है. इसकी बात करें तो यस 2 वेरिएबल है तो CNF में है. ये टर्मिनल आ रहा है तो यस CNF में. दिस इज ऑल्सो सिंगल टर्मिनल, दिस इज ऑल्सो सिंगल टर्मिनल. मतलब सारे प्रोडक्शन मेरे CNF में कन्वर्ट हो गए हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट वन. सो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू CNF. तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ XA और YB को 2 पार्ट में बांट लेता हूं. तो चलिए मैं XA को P से प्रोड्यूस कर देता हूं. अगेन अ न्यू वेरिएबल, आई हैव टेकन अ न्यू वेरिएबल हियर इन ग्रामर. तो P प्रोड्यूसेस XA लिख देता हूं मैं और Q प्रोड्यूसेस YB लिख देता हूं. और अब अगर मैं P और Q 2 नए वेरिएबल ले दे रहा हूं तो मैंने क्या किया, S प्रोड्यूसेस यहाँ पर PQ में इजिली लिख सकता हूं. अगर आप देखें तो दिस XA को मैं बोल देता हूं कि इट इज P and this YB is actually Q. So in this way I can write S produces PQ. Now rest of the productions will be copied as they are. इसमें हमको कोई भी changes नहीं करने हैं. The only thing which is left here is that is X produces 0 and Y produces 1. That's it. So in this way you can convert the grammar into Chomsky normal form. So now our grammar is in CNF because अगर आप right hand side पे देखें so either 2 variables are coming or a single terminal is coming here. So this in this way we can convert grammar into Chomsky normal form. Let us solve one more problem here to understand it more clearly. Just a second. So I have taken another example here. Here I have written few
symbols in terminal like tilde sign and s. Now here tilde is the terminal. Again the left bracket, this sign, the inverted C type of sign. I don't know for what purpose it is used, but it is, if it is not a capital letter, it is your terminal. Then dollar, then right parent, the right bracket. So all of these are terminals here. Small p and small q are also in the set of terminals. The only variable here is capital S. तो अब इसको अगर हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैंने सारे टर्मिनल्स को यहाँ पर क्या कर दिया, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनको मैंने यहाँ पर क्या किया, रीनेम कर दिया एक नए वेरिएबल के साथ। आप देखें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर हमको जो टर्मिनल प्रॉब्लम कर रहा था वो कौन सा था, ये वाला, दिस टिल्डे साइन। ठीक है, अगर मैं इस प्रोडक्शन की बात करूं, ये भी सीएनएफ में नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से टर्मिनल प्रॉब्लम दे रहे थे, तो दिस वन, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द टर्मिनल्स हियर आर वाज गिविंग प्रॉब्लम कि यहाँ पर ये सीएनएफ में नहीं बन रहा था। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं स्मॉल p की, तो इट इज इन सीएनएफ, दिस स्मॉल q इज आल्सो इन सीएनएफ। ये दोनों सीएनएफ में है क्योंकि सिंगल टर्मिनल है। तो मैंने बाकी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे टर्मिनल्स, उनको मैंने रीनेम कर दिया। जैसे टिल्डे साइन को x कर दिया, this left bracket is renamed as a, this inverted c is renamed as b, again dollar is renamed as c and right bracket is renamed as d। तो इस तरीके से मैंने सबको एक वेरिएबल का नाम दे दिया और यहाँ पर मैं सबको, आप देखें तो मैं यहाँ पर प्रोड्यूस भी करा दूंगा। A produces left bracket, B produces this inverted C, C produces dollar and D produces right bracket। तो इस तरीके से आपको पूरी ग्रामर हर स्टेप में लिखनी है। ठीक है, नाउ विल चेक कि क्या इस स्टेप को करने के बाद मेरी ग्रामर CNF में कन्वर्ट हुई। तो ये चेक करते हैं हम। पहला प्रोडक्शन है S produces XS, यस दो वेरिएबल आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो यस इट इज इन CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ पर 5 वेरिएबल आ रहे हैं तो इट इज नॉट इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, मतलब इस पे हमें अभी काम करना है। स्मॉल p यस, स्मॉल q यस, सिंगल टर्मिनल है, दिस इज आल्सो सिंगल टर्मिनल, दिस इज आल्सो सिंगल टर्मिनल, दिस इज आल्सो सिंगल टर्मिनल, दिस इज आल्सो single terminal। So there is only one production A, S, B, C, D which is not in Chomsky normal form. Rest of the productions are there in Chomsky normal form। तो इसको convert करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको convert करने के लिए इसको parts में divide कर देता हूं। कैसे, मैं यहाँ पर let us take AS as some new variable। तो मैंने यहाँ AS को चलिए कुछ मान लेता हूँ, let's say P। सिमिलरली BC को मैं कुछ मान लेता हूँ Q। ठीक है, इस तरीके का कोई नया वेरिएबल, इट इज नॉट नेसेसरी पी और क्यू ही मानिए, आप कोई एक नया वेरिएबल जो इस ग्रामर में नहीं है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि P और Q ले लिया। देखिए P को मैंने AS कर दिया, P प्रोड्यूसेस AS एंड Q प्रोड्यूसेस BC। एंड नाउ आई कैन राइट हियर S प्रोड्यूसेस XS, PQD, स्मॉल PQ, और रेस्ट ऑफ द ग्रामर विल बी कॉपीड एज इट वाज। तो अब चेक करूंगा मैं क्या कि अब हो चुका है क्या अब मेरा ग्रामर इसमें CNF में। तो फर्स्ट वन तो ऑलरेडी था, PQD। PQD अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ 3 वेरिएबल आ रहे हैं और 3 वेरिएबल जब राइट हैंड साइड पे है तो ये हमारा CNF नहीं है, हमें या तो 2 वेरिएबल चाहिए या सिंगल टर्मिनल चाहिए। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी चेक्ड, यस दिस इज आल्सो इन CNF, दिस इज आल्सो इन CNF। AS यस CNF में है 2 वेरिएबल, BC CNF में है, this one, this one, this one, all others are in the form of CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। बस एक अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर PQ को मैं एक कोई और नया वेरिएबल एज्यूम कर लेता हूँ। तो आप चलिए PQ को या QD को, इट इज अप टू यू, जैसा आप सॉल्व करना चाहे आप एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर देखते हैं कि क्या एज्यूम किया है। तो मैंने क्या किया, PQ को एक नए वेरिएबल R से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, R प्रोड्यूसेस PQ। तो अब जो मेरा प्रोडक्शन है S में वो बन जाएगा RD, दिस PQ हैज बिकम R, राइट। तो अगर ये R बन गया है तो अब मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा RD, और यहाँ पर मैं R प्रोड्यूसेस PQ एक नया प्रोडक्शन लिख दूंगा। एंड आफ्टर दैट बाकी के प्रोडक्शन वैसे ही सेम एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। नाउ आई विल अगेन चेक कि क्या मेरा ग्रामर CNF में कन्वर्ट हो गया है। तो यस, देयर इज आइदर
टू वेरिएबल्स ऑन राइट हैंड साइड और सिंगल टर्मिनल, सारे प्रोडक्शंस में आप देखें तो यस, आपका पूरा का पूरा ग्रामर CNF में कन्वर्ट हो गया है।